Then what is atomic vectors? So different types of atomic vector like numeric vector, integer vector, character vectors, logical vector. Then you learn ki how to access vector elements. Okay. So vector is classified according to two types, atomic vectors and list. Okay. Where list is the second data structure that you are supposed to learn. Okay. After completing vector, you will learn list data structure. Okay. So list is also a collection of elements, but all the elements will be of different types. So actually, vector is classified into two ways: atomic vector and list. Where in atomic vector, all the elements are of same type. Vector may list may consist of elements of different types. Okay, so atomic vector कौन से हो सकते हैं? तो numeric vector, where vector will consist of only numeric values. Integer vector, where integer vector will consist of only integer numbers. Character vector will consist of only character values, character or string. Logical vector will consist of only logical values like true and false, and so on. So there are different ways of accessing the vector elements. Okay, first important thing, देखो, later when you will do the data analysis, what you are supposed to do is, देखो एक्सेल फाइल में बहुत सारा डेटा है, सपोज कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, और आपको डेटा को अगर एनालाइज करना है, सो व्हाट यू कैन डू इज, वो एक्सेल फाइल का पूरा एंटायर कॉलम, सपोज पहला कॉलम है रोल नंबर का कॉलम, उसमें सपोज 10,000 रोल नंबर्स है, तो आप क्या कर सकते हो, पूरा पहला कॉलम वेक्टर के अंदर स्टोर कर सकते हो, है ना. वेक्टर इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप. लेटर देन यू कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन दैट पर्टिकुलर रोल नंबर वैल्यूज. ठीक है, प्रोग्रामिंग अगर आपको करना है, रोल नंबर के ऊपर अगर कुछ आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, नॉट ओनली सिंगल कॉलम, मल्टीपल कॉलम्स आल्सो यू कैन स्टोर. ठीक है, सो वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स हमको पढ़ना है बाद में. ठीक है, सो देयर इज अ फैसिलिटी इन आवर प्रोग्रामिंग टू रीड द डेटा फ्रॉम द एक्सटर्नल फाइल. आपका जो भी डेटा है जिसको आपको एनालाइज करना है, वो सपोज कि एक्सेल फाइल में है. ठीक है, एज्यूम करो कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, सपोज स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, मार्क्स, लाइक 10,000 स्टूडेंट रिकॉर्ड स्टोर्ड इन एक्सेल फाइल. और उस डेटा को अगर आपको एनालिसिस करना है, तो उस फाइल का डेटा आप अलग अलग जो डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है उसके अंदर आप फेच कर सकते हो. ठीक है, सो जैसे कि वेक्टर के अंदर आप पूरा एक फाइल का पूरा कॉलम का कॉलम एक वेक्टर में स्टोर करके आप उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. तो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो वैल्यूज कैसे एक्सेस करना है, वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो how to access elements of vector? So there are different ways of accessing the vector elements, like indexing with integer vector. So we can access the elements from the vector by using the concept of index, where index starts from 1. Okay, so first element will be stored at index number 1, second element at index number 2, and so on. So when I write d of 2, where d is a vector, so d of 2 will
Audible, students? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Let's continue with the lecture. Okay. So, accessing the elements of vector. Okay, different ways of accessing the vector elements. First way is by using index, you can access the vector elements. The second way is we can access the vector elements by using user-defined index as well. While storing or while creating the vector itself, we can assign user-defined index to each and every element. Okay. So instead of by default index 1, 2, 3, 4, we can also assign user-defined index to each and every element. Later, you can also access the vector elements by using those user-defined indexes. Like suppose stud vector array create करा हुआ मैं stud is equal to c of roll number is equal to 101, marks is equal to 80.74. So actually 101 and 80.74, these are the components of the vector. Where first component 101, the index associated with that element is roll number. So roll number is 101 एंड सेकंड एलिमेंट जो है 80.74 उसका इंडेक्स क्या है मार्क्स. सो ये क्रिएट करते समय डिफाइन किया गया इंडेक्स. सो लेटर बाय यूजिंग दिस इंडेक्स आल्सो यू कैन रिट्राइव द elements of the vector. Suppose मैंने लिखा stud of roll number, so it will retrieve 101. Stud of marks will retrieve 80.74 and so on. So up to this we discussed in the last lecture. Today we'll discuss about remaining ways to access the vector elements. Third way is indexing with logical vectors. So in logical indexing, it returns the values of those position whose corresponding position has a logical vector true. Okay, so by using logical values also you can retrieve the corresponding elements from the vector. For example, assume that VC is a vector with 6 elements 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, I want to retrieve specific elements, multiple specific elements from this vector. So कौन कौन से पोजीशन के एलिमेंट्स रिट्राइव करना है. फॉर दोस पोजीशन आई कैन स्पेसिफाई ट्रू ओनली. फॉर रिमेनिंग पोजीशन यू कैन आई कैन स्पेसिफाई फॉल्स. सो दिस लोकेशन के लिए ट्रू लॉजिकल वैल्यू स्पेसिफाई किया है उस लोकेशन का एलिमेंट रिट्राइव होगा. फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे मुझे एक्सेस करना है एलिमेंट, सो कैसे मैं एक्सेस कर सकता हूँ. सो कौन से वेक्टर से एक्सेस करना है, वीसी वेक्टर से. सो वीसी देन वेक्टर के बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स स्पेसिफाई करना होता है कौन से एलिमेंट आपको रिट्राइव करना है. ठीक है, तो मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स रिट्राइव करना है यहाँ पे. ठीक है, लेकिन कैसे रिट्राइव करना है, अकॉर्डिंग टू बुलियन वैल्यूज. ठीक है, तो मुझे मल्टीपल बुलियन वैल्यू स्पेसिफाई करना है, तो मुझे वो मल्टीपल बुलियन वैल्यूज कंबाइन करना पड़ेगा. तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सी ऑफ, तो आई थिंक करके मुझे फर्स्ट एलिमेंट रिट्राइव करना है, सेकंड रिट्राइव करना है और डायरेक्टली फिफ्थ एलिमेंट रिट्राइव करना है. सपोज 3 एलिमेंट मुझे एक्सेस करना है, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ, टोटल 6 एलिमेंट्स. ठीक है, सो आई कैन राइट हियर इन दिस ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा फॉल्स कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स. सो जिस लोकेशन पे ट्रू है उस लोकेशन का एलिमेंट रिट्राइव हो जाएगा. सो पहला बुलियन वैल्यू ट्रू तो फर्स्ट एलिमेंट विल गेट रिट्राइव्ड, सो वन डिस्प्ले होगा. तो दूसरा बुलियन वैल्यू ट्रू स्पेसिफाई किया है तो दूसरा एलिमेंट भी रिट्राइव होगा. थर्ड और फोर्थ के लिए फॉल्स लिखा है तो थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट विल नॉट बी रिट्राइव्ड. फिफ्थ अगेन ट्रू, सो फिफ्थ एलिमेंट विल बी रिट्राइव्ड. 5 6th अगेन फॉल्स, नॉट रिट्राइव्ड. सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस. सो दिस द वे हाउ यू कैन also access the vector elements. अभी एक सिचुएशन कहाँ पे कब आएगा ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये सिर्फ ध्यान में रखना कि दिस इज आल्सो अ वे यू कैन एक्सेस द वेक्टर एलिमेंट्स. The last way is accessing using vector. ठीक है, you can also access the elements of other vector by using the values of another vector. ठीक है, एक वेक्टर के एलिमेंट्स आप दूसरे वेक्टर के एलिमेंट के अनुसार एक्सेस कर सकते हो. मींस दूसरे वेक्टर के जो एलिमेंट है दैट विल एक्सेस एज अ इंडेक्स and accordingly the elements of first vector will get access. So in this example we will show how to access the vector elements using another vector in R. So I assume that a vector, ठीक है, a is equal to c of India, China, Japan. So ऐसे कुछ स्ट्रिंग्स वैल्यू यहाँ पे स्टोर किए a वेक्टर में. ठीक है, b वेक्टर में क्या स्टोर किया है, 2 4 6 3 एलिमेंट्स. ठीक है, दो वेक्टर है a and b. I can write print a of b. What I can write, print a of b means I want to access the elements of a vector. लेकिन a एलिमेंट के वेक्टर के कौन से एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसके इंडेक्स स्पेसिफाई करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट में. तो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने क्या स्पेसिफाई किया है, b वेक्टर a of b. तो b क्या है, 2 4 6. So it is clear that from this vector a the elements available at index number 2 4 and 6 that will get retrieved.
ठीक है. सो प्रिंट ए ऑफ बी, ये ए वेक्टर स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स एक्ट कर रहा है एज अ सेकंड वेक्टर बी. तो बी वेक्टर में पहला एलिमेंट है 2, तो सेकंड इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है वेक्टर ए में? चाइना. दैट गेट रिट्राइव्ड. सो बी वेक्टर में सेकंड एलिमेंट है 4, सो फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट है यूके, दैट विल गेट रिट्राइव्ड. देन थर्ड एलिमेंट इज 6, तो 6 पोजीशन का एलिमेंट जो भी है वो रिट्राइव होगा. ठीक है. So you can also access the elements of one vector by using the elements of another vector as well. ये तो आपको पता है, लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है. प्रिंट ए ऑफ सी ऑफ 5 7, ए वेक्टर के एलिमेंट्स एक्सेस करना है. स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे मल्टीपल इंडेक्स स्पेसिफाई करना है, तो कंबाइन करना पड़ेगा. मल्टीपल इंडेक्स डायरेक्टली यू कैन नॉट स्पेसिफाई, सी फंक्शन यूज करना ही पड़ेगा. ठीक है. सी ऑफ 5 7, ओनली एक ही इंडेक्स अगर होता तो आई कैन राइट ए ऑफ सी, ए इन स्क्वायर ब्रैकेट से 5. ठीक है. लेकिन दो इंडेक्स के एलिमेंट्स मुझे एक्सेस करना है 5 एंड 7, तो सी फंक्शन यूज करना पड़ेगा. एंड सो ऑन. Then using negative values in R, negative index also you can specify. Okay, negative index means what? So we can access the vector elements using negative values and Boolean values. In R vectors, negative index position is used to omit those values. अगर आपने इंडेक्स स्पेसिफाई किया तो उस इंडेक्स का एलिमेंट एक्सेस होता है, लेकिन स्पेसिफिक इंडेक्स के एलिमेंट छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स रिट्राइव होना चाहिए. इफ दिस इज द कांसेप्ट, यू कैन यूज नेगेटिव इंडेक्स एज वेल. सो इफ आई राइट, suppose a is a vector, I can write a of -3, a vector, and इंडेक्स क्या स्पेसिफाई किया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में -3. सो थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट छोड़ के सारे एलिमेंट रिट्राइव हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे. ठीक है. नेगेटिव इंडेक्स. सो एग्जांपल दिया है, देखो यहाँ पे a vector, again it is a collection of string values. b vector, और b vector में दो नंबर स्टोर किए हुए हैं -3 and -6. I can access vector a like this, print a of b. ठीक है. तो b में क्या स्टोर है? -3 and -6. सो -3 क्या है? जापान. सो स्किप हो जाएगा, ये रिट्राइव नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है -3. -6 रशिया. ठीक है. सॉरी, हाँ, जापान और रशिया छोड़ के सारे एलिमेंट रिट्राइव हो जाएंगे. यहाँ पे आउटपुट नहीं दिया है, तो we'll try this to check whether it works or not. Assume that a vector with the elements 23, 67, 89, 54, 78. Now I want to access all the elements of this vector except this second element. What should I write? सेकंड एलिमेंट छोड़ के मुझे सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है, सारे एलिमेंट प्रिंट करना है सपोज ए वेक्टर के एक्सेप्ट दिस सेकंड एलिमेंट. व्हाट शुड आई राइट? हाउ आई कैन एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट सेकंड? यस, प्रिंट करना है. ठीक है. क्या प्रिंट करना है? वेक्टर ए के एलिमेंट्स. लेकिन सेकंड एलिमेंट मुझे स्किप करना है, तो इंडेक्स में स्पेसिफाई कर सकता हूं स्क्वायर ब्रैकेट में व्हाइल एक्सेसिंग द एरे एलिमेंट्स और वेक्टर एलिमेंट्स a of -2. ठीक है. सो 23, 89, 54 एंड 78. ठीक है. एज्यूम करो कि अभी मुझे थर्ड और फोर्थ एलिमेंट छोड़ के सारे एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे प्रिंट करना है ए वेक्टर ए के एलिमेंट्स. ठीक है. लेकिन कौन से एलिमेंट स्किप करना है? 89 और 54. क्या लिखना पड़ेगा? पूरा स्टेटमेंट बोलो. प्रिंट ए इन स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स माइनस,
So is it correct? No Correct sir, है? C. Yes, ऑनलाइन पे बहुत स्टूडेंट्स अच्छे से आंसर दे रहे हैं. कितनी बार मैंने एक्सप्लेन किया अभी, आपको अगर मल्टीपल इंडेक्स स्पेसिफाई करना है तो सी फंक्शन यूज करना पड़ेगा, कंबाइन करना है दो इंडेक्स. ठीक है, सो इट विल नॉट वर्क. अगर आपने ऐसे लिखा तो वर्क नहीं करेगा, देखो एरर आ जाएगा. ठीक है, ए ऑफ when दो इंडेक्स स्पेसिफाई करना, that's why these two indexes should be combined by using C function. Now it will work. अभी टाइपिंग मिस्टेक है. हाँ, C ऑफ तो पहले राउंड ब्रैकेट कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद इंडेक्स वाला ब्रैकेट कंप्लीट होना चाहिए. हाँ, ये और एक ब्रैकेट चाहिए. सो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट आई कैन कंप्लीट ऑन नेक्स्ट लाइन. सो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है ना. प्रिंट वाला राउंड ब्रैकेट बाकी था. तो देखो 23, 67 and 78. So third and fourth element, which is 89 and 54, are skipped. ठीक है. So in this way also you can use the negative indexes. ठीक है. So this is the vector A, B नाम का और एक में वेक्टर क्रिएट करा हूं, उसमें -1, -2 ऐसे कुछ वैल्यू स्टोर की है. आई कैन राइट प्रिंट A of B. अभी क्या डिस्प्ले होगा? What will be the output now? 89, 54 and 78. ठीक है, 89, 54 and 78. The next, manipulate R vector elements. You can also manipulate the vector elements. Okay, so different ways of manipulating the vector elements are given over here. So in R programming, we can manipulate the vector elements in the following ways. Assume that vector A consists of these many elements. So I can update the seventh element from the vector. Seventh element कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 60 है. मुझे यहाँ पे 77 स्टोर करना है. सपोज अपडेट करना है मुझे वेक्टर का एलिमेंट. सो आई कैन अपडेट एट एनी टाइम. ठीक है, 7 इंडेक्स का एलिमेंट अपडेट करना है, सो सिंपली आई कैन राइट A of 7 is equal to 77. ठीक है, प्रिंट A अगर आपने किया तो यहाँ पे आपको 77 अपडेटेड वैल्यू मिलेगा यहाँ पे. देन सपोज इस वेक्टर में जितने भी वैल्यूज लेस देन 0 है वो मुझे अपडेट करना है 99 से. ठीक है, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर लेस देन 0? Two values are there, -15 and -5. What are the values which are less than 0? If I want to modify those value to 99, I can write like this: A of A less than 0 is equal to 99. ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स जो इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, वेक्टर ए का एलिमेंट अगर लेस देन 0 है तो दैट एलिमेंट विल गेट मॉडिफाइड टू 99. ठीक है, if I write A is equal to A of 1 colon 5, what will happen? 1 to 5, all the elements from index number 1 to index number 5 will get displayed as output. है ना, यहाँ पे range operator यूज किया है 1 colon 5. Deleting a vector. ठीक है, so to delete an entire vector you can write A is equal to null. Suppose A vector है तो A is equal to null लिखना है सिर्फ आपको. बाद में अगर आपने print A किया तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि वेक्टर A डिलीट हो चुका है. ठीक है, so in order to delete entire vector you can use this syntax: A is equal to null. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, सो वेक्टर ए, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर ए. ठीक है, मुझे सपोज सेकंड एलिमेंट मुझे चेंज करना है 70, अपडेट करना है मुझे 70 यहाँ पे, तो क्या लिखना पड़ेगा? ए ऑफ 2 इक्वल टू
70। बाद में अगर आपने ए वेक्टर प्रिंट किया तो सेकंड एलिमेंट वेक्टर का भी चेंज हो चुका है 70। ठीक है, assume that if I want to update all the elements which are less than say 60, what are the element which are less than 60, I want to update it to 70, तो क्या करना पड़ेगा? A of A less than 60 is equal to 70। Okay, so कौन कौन से दो एलिमेंट अपडेट हो जाएंगे? 23 और 54 will get update to 70। ठीक है, later if you print a vector, so first element as well as this second last element updated to 70। ठीक है, थर्ड एग्जांपल, ओके, रेंज ऑफ वैल्यूज। सो सपोज मुझे 2 टू 4 ऐसे एलिमेंट्स एक्सेस करना है। सपोज अब इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 2 टू इंडेक्स नंबर 4 इतने सारे एलिमेंट्स रिट्राइव करना है। सो आई कैन यूज दिस रेंज ऑपरेटर कोलन a of 2 colon 4। ठीक है, so 70, 89 and 70 these elements are accessed। डिलीटिंग अ वेक्टर, ठीक है, अभी मुझे डिलीट करना है वेक्टर ए। ठीक है, सो क्या करना पड़ेगा? ए इज इक्वल टू सिंपली नल लिखना है, NULL, vector A get deleted। So later if you try to access a vector, nothing is there। Then important functions, there are some inbuilt functions are available which are used to perform the operations on vector। So important inbuilt functions, पहला फंक्शन है टाइप ऑफ फंक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, तो टाइप ऑफ फंक्शन टेल्स यू द डेटा टाइप ऑफ द वेक्टर, है ना। वेक्टर का डेटा टाइप क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट, कौन से टाइप के एलिमेंट्स वेक्टर के अंदर स्टोर किया है, वो आप चेक कर सकते हो एट एनी टाइम। सिंपली आपको क्या करना है, टाइप ऑफ फंक्शन को वेक्टर का नाम पास करना है। सो सपोज टाइप ऑफ ए अगर मैंने लिखा और ए के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज है तो न्यूमेरिक करके आउटपुट आएगा। मेक श्योर दैट टाइप ऑफ इज अ सिंगल वर्ड, नो स्पेस इज देयर, इज अ स्टैंडर्ड फंक्शन नेम, इनबिल्ट फंक्शन नेम। देन सेकंड फंक्शन इज सॉर्ट। सॉर्ट फंक्शन को सिर्फ आपको एक वेक्टर पास करना है, वेक्टर वेरिएबल। ठीक है, तो सॉर्ट फंक्शन विल सॉर्ट द वेक्टर एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ऐसे रीअरेंज हो जाएंगे सारे एलिमेंट्स। ठीक है, सॉर्ट फंक्शन, प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं, रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल है। इफ यू वांट टू सॉर्ट द वेक्टर एलिमेंट्स, सिंपली यूज दिस सॉर्ट फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल भी वापस से एक वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू c ऑफ 56, 89, 32, 11 माइनस 8, वेक्टर a। ओके, नाउ सपोज इफ अभी इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सा एलिमेंट है? 56। इंडेक्स नंबर 2 पे 89 है। अगर मैंने सॉर्ट फंक्शन का यूज किया तो सारे एलिमेंट रीअरेंज हो जाएंगे वेक्टर के अंदर। सो जो एलिमेंट इंडेक्स नंबर 1 पे था 56, अभी वहां पे -8 आ जाएगा, इंडेक्स नंबर 1 पे -8 आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऐसे एलिमेंट अरेंज हो जाएंगे। सो कौन सा फंक्शन है? सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन को क्या पास करना है? वेक्टर, व्हाटएवर द वेक्टर यू वांट टू सॉर्ट। सो मुझे वेक्टर ए को सॉर्ट करना है। ठीक है, सो I think original vector remain as it is. Let's check. Yes, original vector remain as it is. Sort function just return the entire array by rearranging the elements in sorted order. But original vector remain as it is. ठीक है, original array sorry vector elements rearrange नहीं होते। तो so you can write like this। अगर वेक्टर ए के एलिमेंट्स सॉर्ट करके मुझे दूसरे वेक्टर में स्टोर करना तो मैं कर सकता हूँ। सो आई कैन राइट लाइक दिस, क्योंकि सॉर्ट फंक्शन क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है रिजल्ट। सो बी इज इक्वल टू सॉर्ट, आई कैन राइट लाइक दिस। अभी बी वेक्टर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आई वांट टू क्रिएट अ न्यू वेक्टर बी, और उसके अंदर मुझे क्या स्टोर करना है? वेक्टर ए के सारे एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो आई कैन राइट लाइक दिस, बी इज इक्वल टू सॉर्ट ऑफ ए। ठीक है, सो लेटर यू कैन एक्सेस बोथ द वेक्टर, ए वेक्टर रिमेन एज इट इज, उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बी वेक्टर अगर देखा तो उसके अंदर ए वेक्टर के सारे एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके स्टोर किया है।
ठीक है. यू कैन ऑल्सो अरेंज द एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. उसके लिए आपको सेकंड पैरामीटर यूज करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग इज इक्वल टू ट्रू. If you write like this, vector elements will get arranged in descending order. Okay, so vector A elements as it is, no change, but vector B, if you go through all the elements of vector A in descending order, largest to smallest. Okay, so make sure that how to arrange the vector elements in descending order. Use the second parameter for sort function, which is decreasing is equal to true. Okay. Sort. Then third function is length. This method is used to count the number of elements within the vector. Length means what? Number of elements in the vector. At any time you can check how many elements are there in a vector. Okay? Simply use this length function, length, and then pass the vector name. It will return the count of values available in that vector. The next function is head, vector comma limit. Okay? Important function is both head and tail. So head function, head, this method return the top 6 elements if you omit the limit. If you specify the limit as 4, then it return first 4 elements. So head function is used to access top few elements of the vector. Okay. Similarly, tail function is used to access last few elements of the vector. Okay. तो हेड फंक्शन को आपको दो पैरामीटर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, वेयर सेकंड पैरामीटर इज ऑप्शनल. ठीक है. हेड इन ब्रैकेट, अगर आपने वेक्टर का नाम स्पेसिफाई किया तो उस वेक्टर के बाय डिफॉल्ट 6 एलिमेंट, टॉप 6, फर्स्ट 6 एलिमेंट विल गेट रिट्राइव्ड. अगर आपने लिमिट अगर स्किप किया तो लिमिट के आपको यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करना कि टॉप कितने एलिमेंट्स आपको रिट्राइव करना है, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 15. ठीक है. तो बाय डिफॉल्ट 6 एलिमेंट्स रिट्राइव होते हैं अगर आपने लिमिट नहीं दिया है तो. सो इन एप्टीट्यूड क्वेश्चन यू मे आस्क क्वेश्चन लाइक दिस, है ना, कि लिमिट अगर स्पेसिफाई नहीं किया हेड फंक्शन को तो कितने एलिमेंट्स रिट्राइव होते हैं. तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, 6 एलिमेंट्स विल गेट रिट्राइव्ड. ठीक है. हेड वेक्टर कॉमा लिमिट. फॉर एग्जांपल वेक्टर ए में कितने एलिमेंट्स है, C is equal to C of A comma B. Okay. तो ये C वेक्टर है. सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 elements are there. I can use head function. Suppose that if I want to print, I want to access first 3 elements of the vector. So I can write head. कौन से वेक्टर के फर्स्ट 3 एलिमेंट चाहिए, ए वेक्टर के कितने एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट 3. तो 56 89 32. ठीक है. हेड फंक्शन को आपने सिर्फ वेक्टर का नाम अगर पास किया तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट 6 एलिमेंट्स विल गेट रिट्राइव्ड. 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5, सॉरी 6 नहीं फिर 5 यहाँ पे. ठीक है. 1 2 3 4 5 बाय डिफॉल्ट 5 एलिमेंट्स गेट रिट्राइव्ड. यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा 5. ठीक है. उसी तरह टेल फंक्शन, टेल A4, लास्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर ए विल गेट रिट्राइव्ड. लास्ट 4 एलिमेंट कौन कौन से, 56 32 11 -8. क्या हो रहा है यहाँ पे, वेक्टर सी. अच्छा हाँ, ए वेक्टर के मैंने यहाँ पे रिट्राइव कर रहा हूँ ना. सी वेक्टर पे ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करे. सी वेक्टर हेड सी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. अगेन
चेंज बाय डिफॉल्ट 6 एलिमेंट्स आर गेट रिट्राइव्ड. ठीक है, 6 एलिमेंट्स. ठीक है, लास्ट स्क्रीनशॉट में जो हमने एक टाइप किया था, हेड ऑफ ए टाइप किया था, और ए वेक्टर में 6 एलिमेंट सही नहीं, 5 एलिमेंट है, दैट्स व्हाई 5 एलिमेंट डिस्प्ले होता है वहां पे. सो जस्ट रिमेंबर 6 एलिमेंट्स गेट रिट्राइव्ड बाय डिफॉल्ट. 6 एलिमेंट्स गेट रिट्राइव्ड if you skip the limit to this head function. ठीक है, so tail function, tail c of c comma 3, so last 3 elements 32 11 minus 8. ठीक है, और tail function आपने लिमिट स्किप किया तो लास्ट 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, so -8 to -8. Any doubt students? तो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये सारे फंक्शन आपको बाद में डेटा एनालिसिस करते समय यूज करने पड़ सकते हैं, तो जस्ट रिमेंबर दिस फंक्शन, सॉर्ट हेड टेल फंक्शन. ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर ऑपरेशन. So first operation is combining vectors. So you can also combine several vectors. Okay, combining vectors. So the C function is not only used to create a vector, but also it is also used to combine two vectors, two or multiple vectors. You can combine. Okay, so while creating vector, you are supposed to combine the elements. You can also combine multiple vectors by using C function as well. By combining one or more vectors, it forms a new vector which contains all the elements of each vector. Okay, so assume that A vector with 3 elements 1 2 3, B vector with elements P Q R. ठीक है, पहला जो वेक्टर है न्यूमेरिक वेक्टर है और दूसरा जो वेक्टर है वो कैरेक्टर वेक्टर है. I can combine these two vector. How I can combine these two vector? I can write C is equal to C of A comma B. अभी